where do we stand out from IMGs? And same for the IMGs की where they stand out. जब आप इस चीज को फील करोगे कि यस आपने जो फील्ड चूज किया था ना वो दुनिया का बेस्ट फील्ड था। ऐसे बोलते हैं ना लोग कि कहीं पे जाने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। True, very true. That's very sense. Hello everyone, this is Rizal Hussain, a fifth year medical student from Kyrgyz State Medical Academy. And today I have with me Dr. Nadim Zafar sir. Welcome to the podcast, sir. Could you please describe what you have done in your field and why did you choose psychiatry? Yes, everyone. I'm Dr. Nadeem. I have done my PG diploma in clinical psychiatry. Right now, I'm working as a clinician and a faculty. And a very good question. Like so many people are asking why I chose psychiatry. I would say that this was not my first love. First of all, I was always fascinated towards only surgery. I would say only surgery. Okay. Right now, but afterwards, the road not taken. Yes. I was somewhat a good speaker, like a soft-spoken person. So like something which is there, like in your personality, that is inbuilt. Yes. Right now, inbuilt. So some of my seniors, so they found it. So they suggested me, no, you are very good in this. You could easily counsel anyone. You could easily make anyone very, very comfortable, right? Okay. So I think psychiatry will be one of the best departments for you. So you should. Okay. After that, yes. But sir, the field in psychiatry, especially in India, वहाँ पे उतना ज़्यादा exposure नहीं है. Despite that, आपने जो psychiatry choose किया, what do you think कि अभी इंडिया में जो scene चल रहा है psychiatry का, is it good enough for the people? क्या हम mental health को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? Yes. After pandemic, right, COVID-19, now mental health जो है अब लोगों के लिए एक important issue बन गया है ना? पहले क्या होता था ना, अगर bone में pain है या सर में चोट लग गया है या फिर एब्डोमिनल पेन है, आपको समझ में आता है, राइट, कि हाँ भाई मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। लेकिन दिमाग में दर्द है ना, वो समझ नहीं पाता था कोई भी, राइट ना। बेसिकली कि वो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ में कुछ इश्यू हो रहा है, किसी को एंजाइटी है या डिप्रेशन है, राइट। सिचुएशन अभी हमारे साथ भी ऐसा है ना कि हम लोग वी आर लिविंग विद द ओल्ड जनरेशन ऑल्सो, यंग जनरेशन ऑल्सो, कि डिप्रेशन को कोई मानता ही नहीं है। ओल्ड जनरेशन जो हमारे वो आज भी नहीं मानते कि डिप्रेशन कुछ होता है, स्पेसिफिकली विलेजेस सर। यस, अगर आपने वो पूछ लिया, जैसे एक मीम भी आया था ना, एक लड़की ने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी आई एम गोइंग इनटू डिप्रेशन, जी, राइट। मम्मी ने बोला पहले पापा से पूछो है नहीं, फिर पापा से पूछा कि डैड आई एम गोइंग इनटू डिप्रेशन, डोंट गो देयर, टेक सुनीता आल्सो, राइट, है ना। लेकिन जो छोटा बच्चा है आज के टाइम में ना, वो थोड़ा उदास होगा, वो बोलेगा hey I'm depressed, don't disturb me. Yes sir. So this is the difference here. So we are in between now, but yes, we have to understand science, we have to understand neurotransmitters, we should understand about dopamine, serotonin, all these neurotransmitters, and it is real. So अभी क्या हो रहा है कि people are getting exposed to the modern society also, and people are understanding mental health. So after the pandemic, yes, people are understanding, and like psychiatry is having like a bright future. Yes. Okay sir. I have a non-medical question जो आप बोलते हो. So a non-medical question sir. What do you do when you don't teach, study, or you don't travel? I watch movies, a lot of movies, and I read books. Okay. Could you suggest some books or movies to our viewers? Movies, all Shah Rukh Khan movies. Okay. Right. And Hollywood movies, A Beautiful Mind, right, about so Dr. John Nash. Okay, sir. Right, and after that, Braveheart, Gladiators. Like so many movies are there. But yes, I do watch a lot of movies. Okay, sir. Okay, so then we'll shift from these general questions to our base, which is FMG oriented. Okay. So the first question that I'll ask, sir, say I'm a fifth medical student. So if I start studying from now for the FMG exam itself, like I have been prepared in the past 4 years, and all of a sudden it clicked in my mind that I have to study for FMG now. So is it a good time for me to start, or is it too late, sir? All those medicos who have been enjoying for last 4 years, if you have passed all these subjects और आपने बहुत enjoy किया, बहुत अच्छा किया. Okay. Very good. ठीक है, because this is a young age, and in this age you have to keep on experimenting yourself. And yes, in final year, 5th year में अगर आप start कर रहे हो ना, this is the right time I'm telling you. For FMG, 8 to 9 months will be enough. Okay. अभी आपके पास में I think in total you are having 8 to 9 months. Yes, sir. Right now, so 9 months will be enough to deliver a healthy baby also, right? Yes? Yes, sir. Okay, fine. So my humble suggestion to all the medicos who are in final year right now, please start studying from now onwards. First of all, learn and understand the concept from the faculty. पहले एक फैकल्टी से अच्छे से पढ़िए आप, डिटेल में पढ़िए आप,
ठीक है, आपको समझना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज कीप इन माइंड, व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी? Yes, sir. You have not started this journey only to pass FMG exam. You have started this journey to become a good doctor. Yes. And for that, you need to learn all 19 subjects. तो अपने कॉलेज में 19 subjects एक बार अच्छे से फिनिश कर लो. And after that, when you go back to India, no, you will be having 6 months. 6 months should be for best revision. Okay, sir. So do you suggest that after we complete our all 19 subjects in 8 to 9 months that we have here, उसके बाद हम इंडिया जाके should we join a coaching, should we study from online, or should we just follow the QBI? First of all, you finish your 19 subjects. When you will be getting your degree in June, that time you should be writing at least 1 or 2 mock exams. If you are able to score more than 165, it means you have built your concept. You don't need to join any coaching center. You can join a library and only test and discussion you can do yourself. But if you are not able to score more than 165, please keep in mind, even if you are a best player, even if you are like Virat Kohli or Yuvraj Singh or Mahendra Singh Dhoni, you always have to practice under the guidance of a coach, Okay. so that there should be right direction. Because like last 6 months will be full of pressure, right? No, so during pressure we do a lot of mistake. सेम थिंग जैसे हम लोग जिम करते हैं ना, स्टार्टिंग में सीख लिया, उसके बाद जिम करते करते वो कब हमारा एंगल गलत हो जाता पता ही नहीं चलता, पीछे से कोच आके बोलता है ऐसे करो आप. एंड दिस इज द नीड ऑफ अ मेंटर. Okay, sir. So most of them who are prepared now, उनके लिए तो clear हो गया होगा. I'll shift from this to a controversial question, sir. हमारे में भी रहता है ना थोड़ा सा कि हम भी जाने क्या हुए or not. So I would like to ask you this question कि where do we stand out from IMGs? And same for the IMGs कि where they stand out. हम उनसे आगे कहाँ पे हैं और वो हमसे आगे कहाँ पे? The comparison is somewhat different, but yes, I would like to highlight few points. All FMGs, you have good international exposure. IMGs, you have good patient exposure. But it does not mean कि आप दोनों ऊपर नीचे हैं. देखिए, हर किसी का टाइम आएगा, राइट ना? जैसे जो IMGs है, उन्होंने PMT का एग्जाम लिख करके वो टाइम में तैयारी करके उन्होंने जो एक सीट वहां पे लिया उन्होंने, राइट जी, है ना? जो FMGs है, आप वो सेम मेहनत, वो हार्ड वर्क, जब आपका जो एग्जाम होता है ना FMG एग्जाम, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स आई वुड से. आज के टाइम पे INI-CET, नीट पीजी, FMG एग्जाम, ये तीनों का लेवल अब इक्वल है. नीट पीजी INI-CET में नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन आपके इसमें जो है ना, आपके FMG में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो जो IMGs ने मतलब 12th में पास करके किया था वो मेहनत करके, वो मेहनत आप FMG के टाइम पे करते हो. तो हार्ड वर्क तो दोनों को एक टाइम पे तो करना है ना? तो दोनों ही जब हार्ड वर्क करके कुछ हासिल करते हो, वो टाइम पे आप इक्वल हो जाते हो. बिकॉज आपको समझना चाहिए कि FMGs, क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग विद FMGs स्टूडेंट्स फॉर लास्ट 8 years. आई नो देयर प्रेशर, है ना? रात के 2 बजे, रात के जो 4 बजे लोग हैं लाइब्रेरी के बाहर पे घूम रहा है ना? बिल्कुल प्रेशर में, फ्रस्ट्रेशन में. रात में कभी कभी चलते चलते हम लोग उनसे मिले थे, बेटा क्या हो गया? नहीं सर कुछ नहीं. बट यस, वो हमें पता है कि ये बंदा किस चीज से जूझ रहा है, जी सर, है ना? तो एक चीज से ये बात से पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि IMGs और FMGs, एक जो है 12 के बाद उतना हार्ड वर्क किया बहुत ज्यादा, और एक ने आफ्टर MBBS हार्ड वर्क किया. लेकिन ये जो हार्ड वर्क का इंटेंसिटी है आपका, वो एक जगह पे मैच कर जाता है. आफ्टर पासिंग FMG एग्जाम, you both of you are equal. Okay, so I have a follow-up question to that. What would you rate कि 1 से लेके 10, from 1 to 10, 1 being the lowest and being the highest, what would you rate FMG exams toughness? I would say 10 out of 10. After, Yeah. so don't you think it will be very hard for us to cope up with all this, and specifically doing it? Like we'll have a changing environment in India. How do we take ourselves ahead of that? If you see, like 5 years before, 10 years before, most of the questions used to be one-liners. Right now, fact-based questions used to be there, but right now, most of the questions are being framed in a clinically integrated manner. आज के टाइम पे जो FMG एग्जाम है, उसका लेवल रियली दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. आई वुड से सेम क्वेश्चंस लेवल है जैसे INI-CET का, नीट पीजी का क्वेश्चंस आप लोग देखिए बैठ करके, रियल में इक्वल है. हाँ, डिफरेंस क्या है? INI-CET में, नीट पीजी में मतलब उनके नेगेटिव मार्किंग्स है जी, हाँ, लेकिन यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है. तो वहां पे कंपटीशन है फॉर सीट. ये जो है, दिस इज अ लाइसेंसिंग एग्जाम टू पास, इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट. बट लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है ना कि
जो 5 years पहले का क्वेश्चन पेपर आप देखोगे या 10 years बैक, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यूज्ड टू बी वन लाइनर, बट लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल का आप देखोगे ना ग्राफ, ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है ग्राफ एकदम पूरा, एवरी टाइम मतलब एग्जामिनेशन विल बी समवॉट डिफिकल्ट देन बिफोर। इसका रीजन मुझे एक चीज ये समझ में आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, व्हाट द मेडिकल सिस्टम इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। ठीक है, क्योंकि एक डॉक्टर जो है कम से कम 1000 जो है ना 1000 पेशेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि भाई आप जो फॉरेन कंट्रीज में गए हो आप, ठीक है ना, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज है वहां पे हर किसी का कुछ ना कुछ मेडिकल करिकुलम थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो वो ये जानना चाहते हैं मेडिकल सिस्टम जो हमारा इंडिया का ना, कि आप जो आते हो यहाँ पे वापस, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, वो जो रियल बात होती है क्लिनिशियन में, जो पेशेंट मैनेजमेंट है, क्लिनिकल मैनेजमेंट है ना, ये सारी चीज आपके अंदर में है कि नहीं है ना। तो बेसिकली आई वुड से कि दिस इज ऑल अबाउट टू इंप्रूव द मेडिकल सिस्टम ओनली। I have another question. Most of the juniors that we have, like second year, third year, fourth year, who got serious recently about their studies, what do you suggest? How should they approach their study plan? Second year, third year. Second year, third year, fourth year. All students in second year, third year, please make a habit of learning from books, standard textbooks, please. आज का जो Gen Z है ना, उनसे मुझे एक कंप्लेन है, हर चीज iPad में लिखते हो, रील चाहिए आपको, शॉर्टकट चाहिए सबको, प्लीज डोंट डू दिस। आप लोग मतलब जरा एक हैबिट डालो, जो भी बुक्स है ना, बुक्स मतलब देख के लगता है इतनी बड़ी किताब कौन पढ़ेगा यार, आपको पढ़ना तो नहीं है, लेकिन जो बुक से पढ़ते हो ना देयर विल बी एक्यूरेसी, वो एक स्टैंडर्ड है, वो मिस्टेक नहीं है उसके अंदर में। तो सेकंड थर्ड ईयर प्लीज स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम बुक्स विद कॉन्सेप्ट, साथ में नोट्स बनाओ, ये इंपॉर्टेंट। Not the iPad, pen and paper. आई फील सो, लेकिन आपको जहाँ पे भी नोट्स बना, लेकिन नोट्स बनाओ, लेकिन बुक से पढ़ो आप, प्लीज बुक से पढ़ो आप। हाँ यस, हाँ वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक चीज और है, जितने भी एफएमजीज हैं, आई विल से नेगेटिव पॉइंट, कि उनका जो होता है ना कि वो मेरा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला जो लाइफ टाइम गोल है, जस्ट टू पास एफएमजी एग्जाम। आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर कि एफएमजी एग्जाम बेटा सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है, उसके बाद आपका इंटर्नशिप बचा हुआ है, फिर पीजी बचा हुआ है, स्पेशलाइजेशन बचा हुआ है, इसको फाइनल गोल नहीं मानना है। दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्स। फाइनल गोल शुड बी मिनिमम, इट शुड बी लाइक अ पीजी इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है। तो जब आप सिर्फ सोचते हैं मुझे सिर्फ एफएमजी करना है, तो आपने पूरी एनर्जी सिर्फ एफएमजी के लिए लगा दिया, बस सिर्फ एफएमजी एग्जाम को पास करने के लिए। उसके बाद जब मतलब पीजी की बारी आती है ना, तो आप सोचते हो कि यार अब ये कैसे होगा, कहाँ से होगा, है ना। आज के टाइम पे मिनिमम रिक्वायरमेंट इज नॉट जस्ट एमबीबीएस, है ना, क्योंकि जो आज के टाइम पे जो पेशेंट्स है ना, वो भी बहुत ओरिएंटेड है। किसी को थोड़ा सा फेल हुआ है ना, वो एक एमबीबीएस है, पीजी वाले के पास जाके बोले कि नहीं मुझे जो है डीएम कार्डियो से मिलना है या मुझे डीएम गैस्ट्रो से मिलना है, उनको पीजी भी नहीं चाहिए। सिटीज में आप देखोगे ना, तो ये चीज है कि मिनिमम टारगेट आप रखो कि आई हैव टू डू माई पीजी। उसके लिए जो है ना, जो आपका स्टार्टिंग से वही होना चाहिए। एक तो चीज ये है, लेकिन दूसरा ऑप्शंस और भी जो आपको ऑप्शंस देखने चाहिए कि भाई देखो 60 साल की जिंदगी है, यू वुड लाइक टू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ऑल, ठीक है, यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यूएसए भी ओपन है आपके लिए, यूके भी है, फिर ऑस्ट्रेलिया भी है, फिर जो न्यूजीलैंड भी है, राइट नो, ये सारे ऑप्शंस भी आपके पास में ओपन है, राइट नो। तो आई फील कि यू पीपल आर यंग, यू शुड कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग योरसेल्फ, यंग हसलर्स, you should. It's a good line, so young hustlers. हमें तो यहाँ पे टैग किया जाता है, हमें टैग नहीं किया जाता, हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर से पढ़ के जा रहे हैं, तो इंडिया के हमारी डिग्री को उतना वर्क नहीं करेंगे जो IMG से FMGs को। So I have a question कि maybe we lack somewhere in the clinical exposure, but after a year of internship, do we still in the same part कि FMG है कि IMG है? सबसे पहले ये जो है ना, ये साइकोलॉजिकल है कि डिफरेंस बिटवीन IMGs एंड FMGs। साइकोलॉजिकल मैं कहूंगा, होता क्या है, जो IMG से उनको ये लगता है कि भाई ये लोग जो है बाहर गए हुए हैं, वहां पे इनको बहुत फ्रीडम है ना, पूरा जितना चाहो मस्ती कर लो, कोई प्रेशर नहीं है ना, तो ये फ्रीडम है। और वहां पे क्या होता है कि IMGs में देखिए, जितने इंडियन मेडिकल कॉलेजेस है, वहां पे बहुत सारे एग्जाम्स है, सेशनल है, वाइवा है, फुल ऑफ प्रेशर है, नो डाउट। तो एक ये बन जाता है कि यार ये लोग जो बाहर से आए हैं, मस्ती करके आए हैं, सिर्फ एक एग्जाम पास किया, उसके बाद ये लोग जो है जो सब इक्वल हो जाता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये भी समझिए कि जो लोग बाहर में रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द रशियन कंट्रीज, जब -20 -30 में जब आपको निकलना पड़ता है ना, वो भी ऐसा नहीं कि 1-2 दिन, लगातार 5 months 6 months। तो यहाँ के कुछ अपने चैलेंजेस हैं,
यहाँ के कुछ अपने चैलेंजेस हैं जो कि वहां पे दिखता नहीं है, वो विजिबल नहीं है, वो सिर्फ जो फोटो में दिखता है ना वो दिखता है ग्लैमरस, अरे यार क्या लाइफ है स्नोफॉल में, हालत इज वेरी टाइट है। Yes, sir. ये रियलिटी है लाइफ की। उसके बाद जो चैलेंजेस है, जैसे आप जो है ना जो बिल्कुल फैमिली से दूर रहते हो, दूसरे कंट्री में आकर के लैंग्वेज का डिफिकल्टी, मल्टीपल थिंग्स आते हैं, है ना। तो दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं, दोनों ही अपने अपने चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी अगर कोई भी आपको ये रियलाइज कराने की कोशिश करे कि तुम FMG हो, तुम IMG हो, वो टाइम पे यू शुड नॉट बी फाइटिंग, यू शुड नॉट बी स्पीकिंग आउट लाउड। प्लीज रिमेंबर हियर, actions speak louder than voice. I have met a neurosurgeon in Andhra Pradesh. Few years back, उनको मिला Padma Shri. I know few of the foreign medical graduates who are doing exceptionally well in India, right? तो आप सिर्फ अपना काम करते जाइए, आप सिर्फ अपना काम करते जाइए, बहुत अच्छे से काम करते जाइए, ठीक है। वो जो आपका जो सक्सेस है ना, वो हंगामा कर देगा, ठीक है। तो ये जो फीलिंग है साइकोलॉजिकल है, होता रहेगा, दुनिया जब तक रहेगी चलता रहेगा। और ये एक फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में रहेगा। जो जेलसी वाली बात होती है या कुछ भी है ना, वो मतलब इमोशनल चीजें हैं, इट विल बी देयर, लेट इट बी। आपका काम है हार्ड वर्क करते जाओ सही रास्ते पे, एंड बी एथिकल प्लीज। That's the most Yeah. needed thing. यस Okay, sir. Talking of enthusiasm, sir, you have spent 8 days teaching the students of KSMA, which is our college. What do you think? How eager they are in the form of learning? आई वुड से कि जब से स्टार्ट हुआ है क्लास, जो डे 1 से लेके लास्ट डे तक, आई थिंक लास्ट डे यस्टरडे वी हैव फिनिश्ड आवर क्लास, Yes, sir. right? So I think this was up to 10-15 and everyone was there with full of energy. तो मुझे ऐसा लगा कि उनके अंदर सीखने का जज्बा है ना। तो यस Sir, आप क्या सजेस्ट करेंगे यहाँ के बच्चों के जो अभी जा रहे हैं लाइक इन ईयर, तो जब वो चले जाएंगे कि what they would miss after this ending their college session, घर जाके वो क्या मिस करेंगे जो they should do now? आप कुछ भी कर लो सब मिस करोगे, है ना, क्योंकि जो आपका एज है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल एज यू हैव राइट नाउ, है ना। जो हमारा जो कॉलेज लाइफ था, ऑब्वियसली आज भी हम लोग कॉलेज लाइफ मिस कर, जो बचपन है वो हमेशा मिस करोगे आप, ठीक है। आज जो आप दोस्त बना रहे हो ना, वो सच्चे दोस्त हैं आपके। Okay, sir. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जो आज जो आप दोस्त बना रहे, कसम से बता रहे, मेरे भी जो दोस्त है ना फर्स्ट ईयर के जो थे ना, वही आज के टाइम पे बेस्ट फ्रेंड है। जिनके देखो सच्चा दोस्त को ना, जिसके साथ जो है ना मतलब गाली में बात कर सको आप, जिसके साथ कुछ भी बात कर लो यार, वो आपको जज नहीं करेगा, आपके हारने से जीतने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वो सिर्फ दोस्त है वो। आज भी हम लोग मिलते, बड़े हो गए अब, लेकिन आज भी हम मिलते हैं ना, वही बकवास बातें, कॉलेज के बकवास बातें पे, फालतू बातों पे आज भी हम लोग ऐसे हंसते हैं जैसे पता नहीं क्या है यार। तो आई वुड से कि जो फ्रेंड्स आप आज बना रहे हो ना, ये फ्यूचर के लिए आपके लिए मेडिसिन, दोस्त जो है ना वो आपके लिए इलाज है, वो मेडिसिन है आपके लिए। लाफ्टर थेरेपी जो है ना, जो कुछ भी आप शेयर कर सकते हो ना, सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में। आज जो हमारे दोस्त बनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो हॉस्पिटल में हो या फिर जो मतलब रिलेटेड टू प्रोफेशन है, मोस्टली हमारी जो दोस्ती होती है वो प्रोफेशनल होती है, उसमें एक लिमिटेशंस है, बाउंडेशंस है ना। तो अभी जो आपका 1 साल बच गया है, सबसे पहली बात तो रोजाना एटलीस्ट 10 से 12 घंटा पढ़ाई करो। लेकिन बाकी जो 3-4 घंटा है ना, प्लीज स्पेंड योर टाइम विद योर फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त हैं। फिर जो भी आपका लोकेशन यहाँ पे मिस हो गया है आपके सिटी में, जी सर, विजिट कर लो आप एक बार, क्योंकि आपको लगता है कि बाद में पैसे कमाऊंगा, आ जाऊंगा, बाद में पैसे होंगे, टाइम नहीं होगा दोस्त। Important. Okay, sir. I have one another question, sir. Rather a serious question. That we spent 5.5 years here for our MBBS degree. After that, हम PG के लिए 3 साल 2 साल ऐसे spend करते हैं. So, what do you think? Is doing MBBS worth it? Worth the hype? 100%. I would say 100%. Because I have experienced it. राइट मैं अपनी जर्नी आपको बताऊंगा कि मेरा ये था कि जब मैं मतलब स्कूल लाइफ में था, तो आई वाज वेरी गुड इन स्पीच, डिबेट कंपटीशन, एक्टिंग, सिंगिंग, ये सब में काफी अच्छा था मैं। और मेरी जो स्कूलिंग वहां से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो वहां पे सिचुएशन क्या था कि जैसे डिबेट कंपटीशन है, स्पीच कंपटीशन, कुछ सीनियर्स के साथ में भी होता है। तो उसमें जब मुझे फर्स्ट प्राइज मिलने लगा, सेकंड प्राइज मिलने लगा, सीनियर्स को मैं डिफीट करने लगा वहां पे, तो मेरे सारे सीनियर्स ने सजेस्ट किया, अरे यार तू गलत फील्ड में, एमबीबीएस छोड़ो, तुम बायोलॉजी वाली सब क्या है, तुम या तो मास कॉम कर लो, सिविल सर्विसेज में है, एमबीए कर लो, ठीक है। तो मुझे भी दिमाग में मेरा ये बन गया था कि हाँ यार ठीक है। तो मतलब इवन आफ्टर एमबीबीएस में मुझे ये था कि मुझे मास कम्युनिकेशन की तरफ जाना चाहिए या कुछ और फील्ड में जहाँ पे मैं मतलब टीवी पे आ सकूं, स्क्रीन पे आ सकूं, ज्यादा एक हीरोइज्म वाला जो होता है, बड़े पर्दे में आने, बड़े पर्दे पे। ओके,
जी। लेकिन जब मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, जनरली आम चलेंगे, जब मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, जो मेरे लिए जो लाइफ चेंजिंग एक्सपेरिमेंट था, लाइफ का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आई वुड से, दैट इज आरएमएल हॉस्पिटल, राम मनोहर हॉस्पिटल में, जो कि पार्लियामेंट के पीछे में, न्यू दिल्ली। जी, आप मेंशन कर डॉक्टर राम मनोहर मेरे लिए लाइफ का जो है मतलब कि बेस्ट पार्ट जो है, बीइंग अ डॉक्टर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। 2 महीना हो गया काम करते हुए, 4 महीना, 5 महीना, बट उसके बाद जो सिचुएशन था ना, जब मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन थी कि बहुत इमरजेंसी थी, एंड एक बार में डिजास्टर कुछ हुआ था, सो मेनी पेशेंट्स वर देयर, मैं और कुछ सीनियर्स थे, सब लोगों ने मिलकर जो बहुत अच्छे से काम किया ना, और मतलब समझो कि हम लोगों ने मोर देन 90% पेशेंट्स को सेव किया था। ओके, तो उसके बाद जब हम लोग जैसे हो गए, वो तो हमारा काम था, है ना। अब वो टाइम मुझे याद है कि हमारी जो ड्यूटी हुई थी लगातार, मेरी ड्यूटी थी 54 आवर्स की लगातार ड्यूटी थी, कंटिन्यूअसली। बीच में कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए सो गया आप, ऐसे करके होता है वहां पे। कुछ सीनियर्स ने लगातार 64 आवर्स की ड्यूटी किया था। लेकिन जब पेशेंट जब वो बच जाते हैं, जब वो वापस जाते रहते हैं डिस्चार्ज करने के टाइम, राइट, उसके बाद जब वो आकर के कोई आपका हाथ चूमता है, कोई जैसे पाँव छूते हैं, या कुछ ओल्ड पेशेंट्स होते हैं जो सर पे आपके हाथ रख देते हैं, वो जो इमोशंस होता है ना, वो लाइफ में आप नहीं खरीद सकते कहीं पे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं लाखों कमा लूं, पैसे कुछ भी कमा लूं, मैं वो जो सीन था मेरे लाइफ में ना, मैं उसको आज तक नहीं भूल पाया। जी सर। और वो चीज है मेरे लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन अब तक का, कि मुझे ऐसा लगा नहीं यार, हीरोइज्म जो था ना, रियल हीरोइज्म, वो आज हम लोग ने प्रूव किया है। इसीलिए गॉड के नीचे मानते डॉक्टर। I hope so, but लेकिन जो सिचुएशन, फीलिंग वही होती है उस टाइम पे, फीलिंग वही होती है, और लोगों का जो इमोशन होता है, एक वही सेम फीलिंग है। उसके बाद मुझे लगे नहीं यार, ये बिल्कुल जो है बिल्कुल राइट प्लेस है, राइट थिंग टू डू है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो बेस्ट प्लेस है, ठीक है। तो वो हैप्पीनेस, वो एंथुसियाज्म, वो मेरे लिए आज तक है। और जितने भी यंग डॉक्टर्स है, see I'm telling you, after 5 years you will be in a different position, you will be working in a different hospital। ये जो एक ना एक बार आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आएगा जब आप इस चीज को फील करोगे कि यस, आपने जो फील्ड चूज किया था ना, वो दुनिया का बेस्ट फील्ड था। That is very motivating words sir। अच्छा लगा सुन के। जैसे आपने अभी मेंशन किया कि 24 घंटे 64 आवर्स आपने ये किया है, ड्यूटी आपकी लगी थी नॉन स्टॉप। सो वो सब चीजें करते हुए आपने इवन आप कि आपने बहुत माइलस्टोन्स मिस किए होंगे, जैसे घर में किसी का फैमिली में शादी, बर्थडेज, ईद, दिवाली, ये सब चीजें, वो तो एज अ डॉक्टर आप अगर मिस कर रहे हो, हम एज अ स्टूडेंट भी अभी मिस कर रहे हैं। सो व्हाट डिड यू सजेस्ट कि आपने कैसे इन सब चीजों के साथ कोप अप किया? देखिए, हॉस्पिटल की जो 24 आवर्स की ड्यूटी है वहां पे वो नॉर्मल है, ठीक है, वो नॉर्मल है, यानी कि 9 AM to 9 AM। ये जो 54 आवर्स, ये सब कभी होता है जब बहुत इमरजेंसी होती है, जब आपको रहना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें नहीं, तो नॉर्मल ड्यूटी है 24 आवर्स ड्यूरिंग रेसिडेंसी, पीजी फर्स्ट ईयर, लाइक इट इज वेरी कॉमन कि 24 आवर्स टू आई वुड से अप टू 40 आवर्स आल्सो समडे, इट इज नॉर्मल। बट यस, आफ्टर दैट, हाँ, जब आप लगातार काम करते रहते हो तो बीच में बहुत सारी चीजें मिस करते हैं, फैमिली थिंग्स एंड ऑल। बट यस, जो एक फैमिली की खुशी अलग है, और एक वो होता है ना कि इफ यू आर एक्चुअली पैशनेट इनफ, राइट, अगर आप अगर के पैशन आपके अंदर में, जो पैशनेट प्रोफेशनल हो, यू विल एंजॉय इट आल्सो। तो होता ये है कि यस, जैसे होता है ना कि सब कुछ आप सैक्रिफाइस करते हो यहाँ तक पहुंचने के लिए, उसके बाद भी आपको गिल्ट फील नहीं होता है, राइट। इसका मतलब ये है कि पैशनेट वर्कर हो, पैशनेट प्रोफेशनल हो। हाँ, साथ में मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि बीच बीच में जो है फैमिली टाइम, फ्रेंड्स का टाइम, वो चीज भी मैं साथ में मैनेज कर लेता हूँ। ऐसे बोलते हैं ना लोग कि कहीं पे जाने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। True, very true। That's very good. Say sir. One last question that I have. It's not a formal question. It's a question from my side. What is the secret behind of your fashion sense, sir? I have been attending your classes for 8 days, and in 8 days I have seen you in 8 different suits, well fitted. Do you have fashion का क्या होता है अंदर से जज्बा होता है? Is that what you have? मैं जनरली बताऊँ आपको, मेरा जो है ना, जो मैं आपको कह रहा था ना, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड ऑल, एक टाइम मेरे अंदर में सच्ची में कीड़ा था एक्टिंग का। मैं अपने कॉलेज का, अपने स्कूल का, ये जो है ना एक्टिंग क्लब है, ड्रामा क्लब, मैं उसका सेक्रेटरी था। ओके, मैं मिमिक्री, सब जितने भी सभी की वॉइस निकालना, सिंगिंग, ये सब जो है बहुत करता था। तो मुझे जनरली एक था है ना कि नहीं यार, एक बार जो है मैं आऊंगा बड़े पर्दे पे, या मॉडलिंग करूंगा कभी न कभी, एक था,
है ना. बट हाँ, ये मुझे ऐसा हमेशा से रहा है, बचपन से है ये चीज, अच्छे कपड़े पहनना मुझे अच्छा लगता है. आई फील वेरी कंफर्टेबल. मुझे एक चीज तो ये भी पॉजिटिविटी भी आती है. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये करता हूँ कोशिश की, जब भी मैं अगर फर्स्ट क्लास लूँ तो मैं न्यू शर्ट लूँ. जो उसका रीजन बस सिर्फ ये है ना कि जब मैं न्यू शर्ट लेता हूँ ना, तो मुझे एक जो है ना एक न्यू एनर्जी मिलती है. एक मतलब वो है, बस एक खुशी महसूस होता है. खुशी है, वो एनर्जी है, वो पॉजिटिविटी है. दैट्स इट. मुझे अच्छा लगता है. या Sure. One for the viewers that I would like to add a story from our MCA class that happened last day. Sir थे हमारे वहाँ पे. A little bit of shooting was happening there. Sir को unexpectedly एक part करना था वहाँ पे. All game, cameras की. Sir उधर बैठे. Sir को बस बोला गया कि no script. Sir को बोला गया, sir ने one take में पूरा खत्म. The actor itself took 4 to 5 shots. सर ने एक ही शॉट में खत्म कर दिया. So from that we can say that you have that acting का enthusiasm from inside. Okay guys, so with that said, do you have anything to say for our viewers lastly? So the last message for all the medical students, आपके अंदर जो बच्चा है उसको बचा के रखना, दिल वाला जो है हमेशा से, है ना. मतलब ऐसा नहीं कि यार अब है ना बड़े हो गए 5 साल के बाद बहुत सीरियस हो गए, नहीं. आपके अंदर जो वो चाइल्ड हो गया ना, वो आपको हमेशा जिंदा रखेगा. राइट. जो एंथुसियाज्म है, जो एनर्जी है, वो प्लीज वो बर्थ है. याद रखो 60 साल की जिंदगी है, दुनिया में तो आ चुके हो आप, है ना. लेकिन अब सीन ऐसा होना चाहिए कि उसमें ऐसा नहीं कि यार मुझे सिर्फ आई हैव टू डू ओनली फॉर माई सेल्फ, ओनली फॉर फ्यू पीपल. नहीं, आप मेडिकल फील्ड में आ चुके, इसका मतलब यू आर स्पेशल. आपको इस फील्ड के लिए जो है ना सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, नेचुरली. तो इट मीन्स यू आर स्पेशल. वो स्पेशल होने का सबूत दो. सबूत सिर्फ अपने लिए नहीं, जब आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो ना, उसके बाद देखो आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी, सब कुछ आपके पीछे भागेगा. राइट. हाँ, दूसरा एक ये भी है कि जैसे ना मेडिकल फील्ड में जब हम लोग आते हैं, मेडिकल लॉ एंड एथिक्स बहुत पढ़ते हैं. किसी भी फील्ड में आप जाओगे, ऐसे बहुत सारे टाइम आएंगे जब आपको शायद के ब्राइब किया जाएगा, या शायद आपको बहुत सारे जो है ना 2 नंबर पैसे बनाने के मौके मिलेंगे. बट प्लीज याद रखना, जो भी 2 नंबर के पैसे हैं वो कभी आपको लाइफ में सुकून नहीं देगा. ठीक है, हो सकता है गलती हो जाए बीच में, लेकिन बट यू हैव टू कीप इन माइंड, प्लीज रिमेंबर, यू बी एथिकल, बी हम्बल एंड बी सॉफ्ट टू योर पेशेंट. नेवर शाउट ऑन योर पेशेंट. पेशेंट जब भी आएगा आपके पास में, वो दर्द में होगा बेचारा, वो टाइम में नहीं दिखा अरे मैं डॉक्टर हूं, है ना. प्लीज रिमेंबर, बी हम्बल, बी पोलाइट, बिकॉज apart from your books, apart from your medical, all professors I'm talking about, right? See, apart from your books and all the teachers, your best teacher in your life will be your patients. Okay? So be humble, be good, and stay healthy and keep shining. Thank you so much. With that motivating note from our side, I would like to end today's podcast. This is Sir Dr. Nadin Zafar for you guys, and this Thank is you. Rizal. We'll meet you with a new video next time. Thank you so much for listening. Thank you.